Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 16 and 17 of your book. Let's start with page number 16, chapter name, Screen Names. Okay. You must be aware of these famous celebrities, but did you know that the names by which you know them are not their real names, but their screen names? Look at the pictures and write their real names. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर दी गई है और उनके स्क्रीन नेम्स दिए गए हैं. स्क्रीन नेम्स मीन्स जो जिनके उनके नाम से जिनको हम जानते हैं, जो वो फिल्मों में जो उनका नाम है, लेकिन रियल लाइफ में उनके नाम जो है वो अलग हैं. सो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके. सो द फर्स्ट इज कैटरीना कैफ. कैटरीना कैफ. कैटरीना कैफ इज अ स्क्रीन नेम, बट हर रियल नेम इज केट टर्कवोट. केट टर्कवोट. KATE Kate Turcotte. Okay. Next is Dilip Kumar. Dilip Kumar. So the real name of Dilip Kumar is Yusuf Khan. Okay. Yusuf Khan. Next, Akshay Kumar. Akshay Kumar. But the real name of Akshay Kumar is Rajiv Bhatia. Rajiv Bhatia. Okay. Next is Rajnikant. Rajnikant. The real name of Rajnikant is Shivaji Rao Gaikwad. Okay, Shivaji Rao Gaikwad. The spelling of Gaikwad is GAEKWAD. Gaikwad. Okay. Next, Rekha. Rekha. But the real name of Rekha is Bhanu Rekha Ganeshan. Bhanu Rekha Ganeshan. BHANUREKHA. Bhanu Rekha Ganeshan. GANESAN Ganeshan. Okay. Next is Ajay Devgan. Ajay Devgan. But the real name of Ajay Devgan is Vishal Devgan. Okay, Vishal Devgan. Next, Tabu. Tabu. But the real name of Tabu is Tabassum Hashmi. Tabassum Hashmi. TABASSUM. Tabassum Hashmi. Okay. Next, Tiger Shroff. Tiger Shroff. But the real name of Tiger Shroff is Jai Hemant Shroff. Jai Hemant Shroff. Okay. And the next is Govinda. Govinda. But the real name of Govinda is Govind Ahuja. Govind Ahuja. Okay. So students, यहाँ पर हमारा पेज नंबर 16 चैप्टर नेम स्क्रीन नेम्स जो है वो खत्म हो गया. आपने इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है. ओके. लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 17. ओके. चैप्टर नेम Ships Ahoy. Fill in the blanks with the correct answers. So the first is Sir Francis Drake carried out the second circumnavigation of the world in 1577 in his flagship the Pelican, which he later renamed the blank. It weighed about 100 tons. सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया था वर्ल्ड का 1577 में अपनी फ्लैगशिप से, अपने जहाज से, जिसका नाम था द पेलिकन. बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, हमें आंसर बताना है, जिसका वेट जो था वो 100 टन्स था. सो द आंसर इज गोल्डन हिंद. GOLDEN गोल्डन हिंद. ओके. नेक्स्ट इज एडमिरल होरेशियो नेल्सन फ्लैगशिप द ब्लैंक vanquished the French as well as the Spanish fleet at the Battle of Trafalgar, which took place near the coast of Spain on 21st October 1805. The ship has been preserved and is on view today in Portsmouth, England. एडमिरल होरेशियो नेल्सन की फ्लैगशिप थी, जहाज था, उनका नाम बताना है हमें, जिन्होंने ट्राफालगर की लड़ाई में फ्रेंच और स्पेनिश जो फ्लीट थी, जो बेड़ा था जहाजों का, उनको बर्बाद कर दिया था स्पेन के कोस्ट पर 21 अक्टूबर 1805 को. द शिप हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज ऑन व्यू टुडे इन पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड. लेकिन अब उस शिप को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में रखा गया है. सो हमें उस शिप का, उस जहाज का नाम बताना है. ओके. सो द आंसर इज विक्ट्री. द शिप्स नेम इज विक्ट्री. ओके. नेक्स्ट इज इन 1819 द ब्लैंक became the first ship to employ steam power to cross the Atlantic Ocean. It demonstrated the practical ability of steam navigation on the ocean by using a steam engine and pine-wood fuel supply. In 1819 के अंदर ये पहली जहाज थी जिसमें स्टीम इंजन का यूज किया गया था अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने में. ओके. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था स्टीम इंजन के प्रैक्टिस के लिए ओशियंस को क्रॉस करने में. जो पहला स्टीम इंजन यूज किया गया था वो इसी जहाज के अंदर यूज किया गया था. तो हमें इसका नाम बताना है. ओके. सो द आंसर इज सवाना.
SAVANNAH, Shavana. Okay. Next is, it's very important. On 15 April 1912, the world's largest and most luxurious ocean liner back then disappeared into the ice depth of North Atlantic on its maiden voyage and took the lives of around 1,500 people, including men, women and children. 14 and 15 अप्रैल 1912, 14 और 15 अप्रैल की रात को 1912 में ये दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप थी, जहाज था, जो अचानक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आइस डेप्स यानी जो आइस की शीट्स थी बर्फ से टकराकर अपनी पहली ही मेडन वॉयज, पहली ही यात्रा पर गायब हो गया था, जिसके अंदर 1500 पीपल, 1500 लोगों की जान चली गई थी, जिसके अंदर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन सभी थे। सो हमें उस जहाज का नाम बताना है। सो द आंसर इज टाइटैनिक, द फेमस टाइटैनिक। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज the blank was the first of two largest battleships built by the Germans during World War II, launched in 1939. The ship displaced 52,600 tons, mounted 15-inch 38-centimeter guns and had a speed of 30 knots. The blank was the first of the two largest battleship. ये उन शुरुआती दो लार्जेस्ट बैटलशिप में एक थी जो जर्मन्स ने बनाई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। इस शिप का जो वजन था वो 52,600 टन था। इस पर एक गन लगी हुई थी, 38 सेंटीमीटर की हाइट पर एक गन लगी हुई थी और इसकी स्पीड कितनी थी? 30 नॉट्स। ओके, 30 नॉट्स। सो द नेम ऑफ द शिप इज बिस्मार्क, BISMARC, बिस्मार्क। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टेट बिट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। फैंटम्स दैट आर ऑब्जर्व्ड ऑन लैंड और सी आर द रिजल्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। जो फैंटम्स हमें ऑब्जर्व होते हैं लैंड में भी या सी के अंदर भी, वो ऑप्टिकल इल्यूजन यानी भ्रम के द्वारा, जो भ्रम होता है हमारा, इल्यूजन होता है, उसकी वजह से दिखाई देते हैं। मैनी सीमन हैव डिस्क्राइब्ड द साइट ऑफ शिप सेलिंग थ्रू द स्काई अबव द ओरिजिन। द इमेजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज मिराजेस कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। कई सारे जो नाविक हैं, सीमैन है, ठीक है, उनको क्षितिज पर जो है जहाज की यानी शिप्स की जो है साइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब किस वजह से होती है? मिराजेस की वजह से। उनको एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जो लाइट रेज होती है उनकी रिफ्रैक्शन की वजह से उनको ये दिखाई देता है। ओके, इन यूरोपियन लीजेंड्स द फ्लाइंग डचमैन इज ए शिप विच इज डूम्ड टू सेल इटरनली, इट फॉरवर्ड्स ए डिजास्टर इफ स्पॉटेड बाय सीमैन। यूरोपियन गाथाओं में, यूरोपियन लीजेंड्स के अंदर ये बताया जाता है कि फ्लाइंग डचमैन नाम का एक जो जहाज था वो अचानक से तबाह हो गया था, गायब हो गया था, और अगर कोई इसे देख लेता है तो ये उसे, नाविक जो है इसको बहुत ही गलत मानते हैं। नाविक अपने लिए इसे एक बहुत ही फ्यूचर के लिए एक बहुत ही गलत साइन मानते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश पेज नंबर 17, चैप्टर नेम शिप्स अहॉय। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने पेज नंबर 17 और 16 को कवर किया है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट स्टूडेंट्स, आपकी इसकी PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।